بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں؟ غور سے پڑھیے اور اس کا جواب دیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو پہلا، اے اور بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ گنگو گومتی یہ افسانہ معصوم بچہ کے کردار ہیں۔ پھول متی پنڈت اجودھیا ناتھ یہ افسانہ بدنصیب ماں کے کردار ہیں۔ یہ دونوں افسانے جو ہیں منشی پریم چند کے افسانی مجموعہ واردات میں شامل ہیں۔ واردات 1938 یہ منشی پریم چند کا آخری افسانوی مجموعہ ہے، جو فروری 1938 عیسوی میں مکتبہ جامعہ نئی دہلی سے پہلی بار شائع ہوا تھا، اور یہ داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے۔ یاد رہے دوستو کہ واردات یہ منشی پریم چند کا آخری افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ 1938 عیسوی میں جامعہ نئی دہلی سے پہلی بار شائع ہوا ہے۔ افسانوی مجموعہ واردات میں کل 13 افسانے شامل ہیں، جو حسب ذیل ہیں۔ شکوہ شکایت۔ شکوہ شکایت کا کردار بابو صاحب، منو جو نوکر رہتا ہے، مہتر، گھورے اور بانگڑو وغیرہ ہیں۔ منو اور بانگڑو یہ دونوں نوکر ہیں۔ دوسرا ہے معصوم بچہ۔ افسانہ معصوم بچہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کا کردار گنگو، میکو، گومتی دیوی یا گنگو کی بیوی رہتی ہے، اور ہنگن۔ افسانہ بدنصیب ماں۔ یہ افسانہ جو ہے 5 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کا کردار جو ہے پنڈت اجودھیا ناتھ پھول متی کا شوہر ہے۔ پھول متی کے 4 لڑکے رہتے ہیں۔ کامتا ناتھ بڑا لڑکا ہے، اوما ناتھ ڈاکٹر ہے، سیتا ناتھ یہ چھوٹا لڑکا ہے، اور دیا ناتھ یہ 4 لڑکے ہیں پھول متی کے۔ کمد، مہری، کہارن، مراری لال، دین دیال، منو یہ سبھی جو ہیں افسانہ بدنصیب ماں کے دیگر کردار ہیں۔ افسانہ شانتی کے کردار دیوناتھ، گوپا، مداری لال، سنیتا، کیدار ناتھ وغیرہ ہیں۔ افسانہ روشنی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ افسانہ روشنی میں راوی ہی مرکزی کردار ہے، جو ICS بن کر ہندوستان آیا ہوا ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ افسانہ روشنی کا کردار جو ہے وہ راوی ہے، جو ICS بن کر ہندوستان آیا ہوا ہے۔ افسانہ مالکن یہ 7 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کے کردار شیو داس، برجو، متھرا، رام پیاری، دلاری، چھنیا، منی بھینس کا نام رہتا ہے، جوکھو اور جانکی وغیرہ ہیں۔ افسانہ نئی بیوی یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ افسانہ نئی بیوی کے کردار لیلا، لالا ڈنکا مل، آشا دیوی، جگل، پنڈت بھولا ناتھ، لالا بھاگ مل، وید جی، منیم جی، بوڑھا مہاراج۔ افسانہ گلی ڈنڈا کے کردار موہن، درگا، گیا اور مانا وغیرہ ہیں۔ افسانہ سوانگ 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور افسانہ سوانگ کے کردار گجیندر سنگھ، شیام دلاری گجیندر سنگھ کی بیوی ہے، صوبے دار صاحب
चुन्नू, मन्नू, भूपेंद्र सिंह या भाई है। नरेंद्र सिंह भी भाई है। अफसाना इंसाफ की पुलिस ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसके किरदार जो है सेठ नानक चंद, कैसर, दारोगा जी, खान साहब, सीता नारायण वगैरह हैं। अफसाना गम नदारी बस बखर के किरदार चड्ढा साहब, देवी जी और पंडित जी और गडरी वगैरह हैं। गम नदारी बस बखर में ये अशार दर्ज हैं। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, ताज़ा दूध पिलाया उसने, लुत्फ़ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत की है मूरत, कैसी भोली भाली सूरत। ये अशार जो हैं गम नदारी बस बखर में दर्ज हैं। अफसाना मुफ्त कराम दाश्तन के किरदार बलदेव सिंह, मोहम्मद खलील और राम हैं। अफसाना कातिल की माँ, इसके किरदार जो है रामेश्वरी और विनोद हैं। दोस्तों कहा जाता है कि वारदात में शामिल 13वां अफसाना जो है वो मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, बल्कि उनकी अहलिया शिवरानी देवी का तहरीर करदा और 1936 ईस्वी में शिवरानी देवी के नाम से ये शाये भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे ज़मानी एतबार से दुरुस्त हैं, सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए और सी, दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। मुल्ला वजही, मीर अमन, इंशा उल्लाह खान, इंशा। मुल्ला वजही की पैदाइश जो है 1566 ईस्वी में हुई है और वफ़ात 1659 ईस्वी में। इंशा उल्लाह खान इंशा की पैदाइश 1752 ईस्वी को मुर्शिदाबाद में हुई है और वफ़ात 1817 ईस्वी को लखनऊ में। और मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और वफ़ात 1808 ईस्वी को कलकत्ता में। तो इसका ज़मानी तरतीब ये दुरुस्त हो जाएगा। मीर अमन इंशा उल्लाह खान इंशा, रजब अली बैग सुरूर। मीर अमन 1932 से 1808, इंशा उल्लाह खान इंशा 1752 से 1817, रजब अली बैग सुरूर 1786 से 1869। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है उर्दू मरासी सानिह करबला के बेहतरीन अक्कास हैं। दलील है इसमें सानिह करबला तमाम मुमकिन पहलुओं का मुवस्सर तरीक़े से अहाता किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा। दावा सही है और साथ ही साथ दलील भी सही है। उर्दू मरासी सानिह करबला के बेहतरीन अक्कास हैं और इसमें सानिह करबला के तमाम मुमकिन पहलुओं का मुवस्सर तरीक़े से अहाता किया गया है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना यूकलिप्टस में लक्खी का असल नाम क्या है?
तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लक्ष्मी रामदास। तीसरा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना यूकलिप्टस उनके अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो 9 अफसानों पर मुश्तमिल है। राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसानवी मजमुआ का इंतसाब आल अहमद सुरूर के नाम किया है। अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल अफसाने लाजवंती, जोगिया, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, टरमेन से परे, हजाम इलाहाबाद के दीवाला और यूकलिप्टस वगैरह हैं। अफसाना यूकलिप्टस के किरदार कुंदन फादर विलियम स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे। माँ सुभाषिनी, लक्की का असल नाम जो है लक्ष्मी रामदास था और शौहर रामदास उर्फ सिद्धू। लक्की कुंदन की नौकरानी थी। सुभाषिनी का चचेरा भाई अमोलिक राम था। यूकलिप्टस के पेड़ को सरजू कहते हैं। कुत्ता, जैगवार, बाबी, फिशरो वगैरह यूकलिप्टस के किरदार हैं। और इसमें एक शेर है, जब नैन से नींद गंवाई, तकिया लेफ बिछौना क्या, आखिर समझ बूझ कुछ सोच प्यारे, प्यार किया तो रोना क्या। यह शेर जो है अफसाना यूकलिप्टस में दर्ज है। दीवाला के किरदार रावी की ननद रूपमती, मानमती सास है, रोपू और शीतल दास हैं। टरमेन से परे के किरदार मोहन जाम, उसकी बीवी सुमित्रा, अचला को अच्छी कहा जाता है और इसका शौहर जो है राम गदकरी है। देही अचला की सहेली है। राधा मोहन की बहन है। रोज़ी अचला की नौकरानी है। जूही जाजो मोहन का बच्चा है। जूही और जाजो जो है मोहन के बच्चे हैं। बब्बल के किरदार दरबारी लाल, सीता बिहारी लाल दरबारी लाल के बड़े भाई थे। सतवंती उर्फ कनीज़ ये इस्माइल की बहन है। इस्माइल सरदार मोहन, भाभी गुणवती या अफसाना बब्बल के अहम किरदार हैं। हजाम इलाहाबाद का किरदार बुधान चंद या रावी है। हजाम लोकपति, हजाम तखल्लुस देवक करता था। हजाम जो है ये तखल्लुस क्या करता था, देवक। चंद्रभान नाजिर हुसैन या हजाम इलाहाबाद के अहम किरदार हैं। लंबी लड़की के किरदार मुन्नी, सोही, दादी रुकमन, भाभी शीला, भाभी देवेंद्र, शाहिद मियाँ, बहन फिरदौस। देवेंद्र के वालिद जगन्नाथ त्यागी थे। मुन्नी की शादी जो है गौतम से होती है। अफसाना जोगिया का किरदार जुगल और हेमा वगैरह हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में एक दावा है और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा है मीर हसन उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार हैं और दलील है क्योंकि उन्होंने 11 मसनवियाँ लिखी हैं। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा। दावा सही है और दलील गलत है। मीर हसन उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार हैं, ये बात तो ठीक है क्योंकि उन्होंने 11 मसनवियाँ लिखी, इसलिए वो उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार नहीं हैं कि वो 11 मसनवी लिखे हैं। तो ये बात गलत हो जाएगा, दलील जो है गलत हो जाएगा।
मीर हसन उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार हैं, लेकिन इस वजह से वो बड़े मसनवी निगार हैं नहीं हैं कि उन्होंने 11 मसनवियाँ लिखी हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में दर्ज अज़ाए तरकीबी की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा, चेहरा सरापा रुखसत आमद। मरसिया ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो रसा से मुश्तक़ है, निकला है। मरसिए को तशबीब से सौदा ने मुतारिफ़ कराया था, जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई। मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी मीर ज़मीर ने मुतय्यन किए हैं। याद रहे साथियों कि मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी मीर ज़मीर ने मुतय्यन किए हैं। मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी 8 हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन। मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी 8 हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुसन्निफ़ीन के एतबार से किताबों के नाम जोड़िए। मुसन्निफ़ीन के एतबार से जो है किताबों के नाम जोड़ना है। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे। अब्दुल्ला हुसैन का नावल जो है उदास नस्लें हैं। इंतज़ार हुसैन का नावल बस्ती है। इलियास अहमद गद्दी का नावल जो है वो फायर एरिया है। और मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल जो है उमराऊ जान अदा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अफ़सानवी मजमूओं के एतबार से मुसन्निफ़ीन के नाम जोड़िए। हम वहशी हैं कृष्ण चंद्र का अफ़सानी मजमुआ है। अपने दुख मुझे दे दो या राजेंद्र सिंह बेदी का अफ़सानी मजमुआ है। रास्ता बंद है ये जिलानी बानो का अफ़सानी मजमुआ है। और चोटे इस्मत चुगताई का अफ़सानवी मजमुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो पहला हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ा में फ़ानी चुपके चुपके तूने या किसका नाम लिया, क्यों ओ काफिर तेरी ज़बां पर अब भी खुदा का नाम नहीं। फ़ानी का यह मक्ता सुनकर किस शायर ने कहा कि खुदा की कसम वह मक्ता कहा है कि अगर सारी उम्र भी पड़े जाए तो सुनने वाले को नया लुत्फ़ आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जोश। दूसरा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा।
اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مولانا محمد حسین آزاد نے کس کی شاعری کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دیتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں دوسرا، خواجہ میر درد۔ مولانا محمد حسین آزاد نے خواجہ میر درد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دیتے ہیں۔ خواجہ میر درد آب حیات کے تیسرے دور میں شامل ہیں۔ یاد رہیں دوستو کہ خواجہ میر درد کا ذکر جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات کے تیسرے دور میں آیا ہے۔ خواجہ میر درد سے متعلق چند مشہور اقوال ہیں۔ بقول محمد حسین آزاد، وہ تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دیتے ہیں۔ امداد امام اثر کا قول ہے، کسک میں سوز و گداز میں درد کی غزلیں میر کی غزلوں کے دوش بدوش ہیں۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، درد عملی زندگی میں چاہیے، بہت سنجیدہ اور ڈوبے ہوئے صوفی رہے ہوں، لیکن ان کی شاعری میں تصوف کا رنگ قال کی منزل سے آگے نہیں بڑھا۔ یہ قول جو ہے شمس الرحمن فاروقی کا ہے خواجہ میر درد کے تعلق سے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو دوسرا، اے اور ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ پلٹ پلٹ کے قفس ہی کی سمت جاتا ہوں، کسی نے راہ بتائی نہ آشیانے کی، آتی رہے گی خیر اب اس زندگی کی موت، آتی رہے گی خیر اب اس زندگی کی موت، یا تو ہوا کہ موت میری زندگی ہوئی۔ اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہ اشعار جو ہیں فانی بدایونی کے ہیں۔ فانی بدایونی کے چند مشہور اشعار، پلٹ پلٹ کے قفس ہی کی سمت جاتا ہوں، کسی نے راہ بتائی نہ آشیانے کی، قسم نہ کھاؤ تغافل سے باز آنے کی، کہ دل میں اب نہیں طاقت ستائے جانے کی، مانا حجاب دید میری بے خودی ہوئی، تم وجہ بے خودی نہیں یا ایک ہی ہوئی، آتی رہے گی خیر اب اس زندگی کی موت پر، یا تو ہوا کہ موت میری زندگی ہوئی۔ یہ اشعار جو ہیں فانی بدایونی کے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے درست ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں چوتھا، اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بے نظیر، بدر منیر اور فیروز شاہ، یہ کردار جو ہیں مثنوی سحر البیان 1784 کے ہیں۔ فیروز شاہ، بے نظیر اور نجم النساء، یہ بھی کردار جو ہیں مثنوی سحر البیان کے ہیں۔
सलीम ये किरदार जो है ड्रामा अनारकली का है। मनकू खान यह नावल फिरदौसे बरी का किरदार है। अलीम और नसू ये दोनों किरदार जो हैं नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसू के हैं। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 53 है, नजूमी पंडित जफरदान हाजिर हुए, बहुत सोच विचार कर ब्राह्मणों ने अर्ज़ की, महाराज का बोल बाला, जा वाहशम मरतबा दो बाला, आला रहे। हमारी पोथी कहती है भगवान की दिया से शहजादे का चंद्रमा बली है, छठा सूरज है जो गरा है वह भली है। यह इबारत किस दास्तान से माखूज़ है। इस तरह के भी सवाल बनते हैं साथियों, और इस तरह के सवाल को आप लोग जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, फसानाए अजायब। यह इबारत जो है दास्तान फसाने अजायब से माखूज़ है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शमएं कई होती हैं लेकिन सबकी तस्वीर एक एल्बम में जमा होकर अपने पास रख छोड़ते हैं और तादीलात में एक एक को ख़त लिखते हैं। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है, उनका शजरा जलालुद्दीन अकबर से मिलता है, इसलिए हिंदुस्तान का तख्तो ताज उनकी मलकियत समझा जाता है। यह किस इंशाइया निगार की तहरीर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, पतरस बुखारी। ये इक़्तिबास जो है लाहौर का जोग्राफिया से माखूज़ है, और लाहौर का जोग्राफिया ये मदामीन पतरस में शामिल हैं। याद रहे दोस्तों कि लाहौर का जोग्राफिया और मरहूम की याद में यानी साइकिल की सवारी, ये दोनों इंशाइये जो हैं मदामीन पतरस में ही शामिल हैं, और मदामीन पतरस 11 मज़ामीन पर मुश्तमिल है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं, दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा, ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लाजिमुल मुब्तदी, नौ सरहार और वाहिद बारी, यह अशरफ बयाबानी की तसानीफ़ हैं। गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ अस्कंदरी, यह मुल्ला नुसरती की मसनवियाँ हैं। कुतुब मुश्तरी और सबरस, यह मुल्ला वजही की तसानीफ़ हैं। मेज़बानी नामा यह हसन शौक़ी की मसनवी है, जो मोहम्मद आदिल शाह की शादी पर इन्होंने लिखी थी। दीवाने जोशिश और दीवाने रज़ा, दीवाने जोशिश और दीवाने रज़ा यह काज़ी अब्दुल वदूद की तसानीफ़ हैं, और तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत को इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने मुरतब
کیا ہے. اسی چیز کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں. صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا. اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. مخدوم محی الدین کی نظم جو ہے چاند تاروں کا بن، انتظار اور آج کی رات نہ جا. فیض احمد فیض کی کہاں جاؤ گے، یاد اور کتے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں. درست زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، اے اور سی. دانا و دام، گرہن، کوکھ جلی اور اپنے دکھ مجھے دے دو. یہ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعے ہیں. ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز اور روشنی کی رفتار. یہ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے ہیں. شکست کرشن چندر کا ناول ہے. گنجے فرشتے یہ سعادت حسن منٹو کا خاکوں کا مجموعہ ہے. دل کسی کا دوست نہیں یہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے. آگ کا دریا یا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے. اے اور سی تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہاں سنبھل جا اب کے زہرا اہل دل کے آب ہیں، کتنے طوفاں تیری کشتی کے لیے بےتاب ہیں. اس شعر پر جوش ملیحہ آبادی کی کون سی نظم ختم ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو کسان. دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. جوش ملیحہ آبادی کا شعری مجموعہ حرف و حکایت ہے، جس میں نظم وفاداران ازلی کا پیام، فتنہ، خانقاہ، برسات کی چاندنی، شام کا رومان، نوجوانوں سے خطاب وغیرہ شامل ہیں. شعری مجموعہ شعلہ و شبنم میں نظم کسان اور شکست زندہ کا خواب شامل ہے. یاد رہے کہ جوش ملیحہ آبادی کے شعری مجموعہ شعلہ و شبنم ان میں جو ہے ان کی نظمیں جو ہیں کسان اور شکست شامل ہیں. نظم جنگل کی شہزادی شعری مجموعہ نقش و نگار میں شامل ہے. نظم کسان کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے: جھپٹے کا نرم رو دیا شفق کا اضطراب، کھیتاں میدان خاموشی غروب آفتاب. یہ شعر جو ہے شعلہ و شبنم میں شامل ہے. نظم جنگل کی شہزادی ابتدا کا یہ شعر ہے. نظم جنگل کی شہزادی کا ابتدا کا یہ شعر ہے: پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں. یہ جو ہے جنگل کی شہزادی نقش و نگار میں شامل ہے اور اسی میں یہ شعر درج ہے. شکست زندہ کا خواب اس کی ابتدا اس شعر پر ہوتا ہے:
क्या हिंद का जिंदा काँप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समंदर दूर है किसका अफसानवी मजमुआ है? जब तक आप लोग जो है सादत हसन मंटो, कृष्ण चंदर, ख्वाजा अहमद अब्बास और गियास अहमद गद्दी के पैदाइश वफ़ात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों समंदर दूर है। ये अफसानवी मजमुआ जो है कृष्ण चंदर का है। दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सादत हसन मंटो की पैदाइश वफ़ात के बारे में। तो इनकी पैदाइश जो है 1912 ईस्वी को पंजाब में हुई है और वफ़ात 1955 ईस्वी को लाहौर में। कृष्ण चंदर की पैदाइश 1914 ईस्वी को पंजाब में हुई है और वफ़ात जो है मुंबई में 1977 ईस्वी को हुई है। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश जो है 1914 ईस्वी को पानीपत में हुई है और वफ़ात जो है 1987 ईस्वी को मुंबई में। गियास अहमद गद्दी की पैदाइश 1928 ईस्वी को झरिया ज़िला धनबाद में हुई है और वफ़ात 1986 ईस्वी को हुई है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, ज़िल में 2 ज़ुमरे सही हैं, दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंसूर मोहना, कैस व लिबना और यूसुफ व नजमा ये तीनों अब्दुल हलीम शरर का नावल है। एक लड़की, पाँवों में फूल और ज़ाफ़रान के फूल, ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। मिरातुल उरूस ये नज़ीर अहमद का नावल है। फसाने आज़ाद ये पंडित रतन्ना सरसार का नावल है। उमराऊ जान अदा ये मिर्ज़ा हादी रसुआ का नावल है। तो इसका राइट आंसर जो है ये तीसरा हो जाएगा, सी और डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।